Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Muhammad Uzaib Zargar with my friends Muhammad Asad Shah and Yasir Ahmed Khan. Today, we are going to start our new chapter that's about tribes. So let's have a brief conversation about tribes, what stereotypes are existing about them. So let's start. Asad, have you ever heard about tribes? Yes, a tribe is a social group of people who share common identity, culture, tradition, and more oftenly a common territory. They usually have their own language, custom, dialect, and festivals. Can you tell me more about their characteristics? Sure, why not? Tribal communities have a strong social bond or a close connection to nature. Many tribes have their own customs, folk songs, folk dances, and a community leadership system. They live in a particular geographical area and preserve their cultural heritage from one generation to next generation. I have heard that tribes are primitive and they do not accept change and prefer to remain isolated. Is that true? That's a common belief among peoples, but I'm not very sure whether it's correct or not. But we have our friend Yasir who actually falls in the ST category. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As Walaikum a assalam. member of tribal community, I would like to clarify this misconception. The term primitive is not appropriate. Tribal people are not backward or resistant to change. Like all other people, we adopted new technologies, education, modern ways of life while preserving our cultural identity. So it means tribal communities are progressing. Absolutely. Many tribal people are doctors, engineers, scientists, poets. Even our president Draupadi Murmu is also a tribal woman. They contribute to society in many fields. Then why these stereotypes exist? Often, people know very little about tribal communities and rely on outdated ideas. In reality, tribal societies possess valuable knowledge about biodiversity, environmental conservation, traditional medicine, and sustainable living. Thank you so much, Yasir, for correcting our misunderstanding. We realize that tribal communities are diverse, dynamic, and part of our society. Yes, we should appreciate their culture and avoid these stereotypes. Yasir, give a message to our viewers in your own language. दाहो इजरा कबीला है या इजरा ट्राइबल पीपलों दा ग्रुप है ये जंगली नहीं वो भी असन लो इंसान हैं जियां असी आपा को इंसान समझते हैं उनका भी रहना दा तौर तरीका है उनको भी आपड़ा इल्म है आगा बढ़ना दे हुकूकां दी जरूरत है क्योंकि वो स्टीरियोटाइप दा शिकार हो गए दिन असी उनको गलत ना समझ सकते हैं पहला सुकून दे बारे में असल तरह जानकारी होनी चाहिए असी पहला उनके बारे में असल तरह समझां सोचां फिर अगर उन्हें गलत हैं तो असी उन्हें गलत आ सकते हैं दहो कोई जब प्रोग्राम होता है एनुअल डे वाले दिन रिपब्लिक डे वाले दिन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जब अगर प्रोग्राम पेश की गई दिन पिछू दाहना सुनना वाले क्लैप्स कर दें तालियां मार दें और असल तरह पिछू शोर कर दें तो इज्जत करना इसको नहीं आते इज्जत करना का मतलब ये है कि उनको अपने बराबर समझना है उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। हम बताओ क्या इस ये मॉडल के प्रोजेक्ट जरिए क्या बना दिखाना चाहते हो? सर ये नेचर पॉजिटिव एग्रो बेस्ड मॉडल है। जी। इस मॉडल में हमने सिंपल सॉल्यूशंस और लो बजट कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है ताकि फार्मर्स वो यूज कर सकें। हाँ। मेनली फार्मर्स को 3 प्रॉब्लम्स होती है विच इज वाटर क्राइसिस, ऑर्गेनिक मिसमैनेजमेंट एंड द सॉइल फर्टिलिटी। फॉर वाटर क्राइसिस वी हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बिल्कुल। उसके बाद प्रिसिशन एग्रीकल्चर जिसमें हमें ये पता चलता है जो एडवोकेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो सॉइल को मिल रहा है या नहीं है। सेकंड है सॉइल फर्टिलिटी, उसके लिए हमने वर्मी कंपोस्टिंग एंड ऑटोमेटेड सेंसर बेस्ड मशीन है। ये कंसेप्ट वाइज है। तो इसमें वर्मी कंपोस्टिंग में हम वर्म्स को डालते हैं ताकि हमारा जो न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट है वो निकले और हम सॉइल के लिए यूज कर सकें। एंड ऑटोमेटेड सेंसर बेस्ड मशीन, इसमें हम सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं और वहां से कंपोस्ट निकलता है जो हम सॉइल्स में डालते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द सॉइल फर्टिलिटी, फॉर दैट वी हैव कार्बन फार्मिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री में हम प्लांट्स और ट्रीज को एक साथ ग्रो करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द कार्बन फार्मिंग, इसमें कार्बन को स्टोर किया जाता है सॉइल के रूट्स में ताकि ये सॉइल कार्बन रिच बन सके और फर्टिलिटी ज्यादा हो सके। So इस प्रोजेक्ट का मेन प्रिंसिपल है दैट वर्क विद नेचर नॉट अगेंस्ट इट। My name is Muhammad Uzaib Zargar. किस क्लास में पढ़ते हो I आप? read in class 8 Rose. Please tell me about this project which you Yes. want to do. This is a project that is solar steel, which
basically integrates on 5 key applications. Basically इसमें सर क्या होता है, यहाँ पर एक हमारे पास सोलर पंप है. सोलर पंप का हमारा जो मोटिव रहता है वो है रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज, और जो सर ये कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उनको हम किसी हद तक रिड्यूस करें. जैसे कि पर ईयर क्या होता है, 2024 में 30 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, वो प्रोड्यूस हो गया था मेनी कंट्रीज से. ओवरऑल इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था. अब अगर हम सर इस सोलर पंप को काम में लाए तो इससे हमारा बहुत सारा काम ये हो सकता है, वो इजी हो सकता है. जैसे कि फार्मर्स जो अपने बड़े बड़े जनरेटर्स का यूज करते हैं, बड़े बड़े फार्मिंग मशीन्स, थ्रेशिंग मशीन्स वो यूज करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशंस, फॉसिल फ्यूल्स है उनकी यूज तो सर बहुत बढ़ जाता है. एक तो हमारी इन्वायरमेंट के लिए वो फ्रेंडली नहीं है. अब हमारे पास जो होना चाहिए क्लीन इन्वायरमेंट, जो कि हमें लंग डिजीज को भी प्रिवेंट कर सकता है. आपने ग्रीन हाउस गैसेस देखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उससे भी क्लीन इन्वायरमेंट नहीं रहता है. अब अगर हम सोलर पंप को यूज में लाएंगे, एक तो हमारे सर जो भी सर ये कार्बन एमिशन है वो बहुत हद तक हो जाएंगे कम, और जो ये फॉसिल फ्यूल्स है उनका यूज भी हमारा बहुत कम होगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन. अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आपने मॉडल बड़ा बेहतरीन बनाया, क्या आप इसको अपनी रियल लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपने सिर्फ डिस्प्ले किया हुआ है, आप इसको रियल लाइफ में आगे जाके जैसे आपने आवाम के बीच में, लोगों के बीच में क्या क्या काम करोगे आप यानी इस पे? आई होप सो वी विल डू सर. जैसे कि यूएसए में कैलिफोर्निया में लॉर्ड माउंटेन में सर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है. अब हम चाहते हैं ये इंडिया में जितनी भी सिटीज है वो सोलर पैनल बने, ये हमारे पास क्लीन एनवायरनमेंट रहे, ना कि ज्यादा कार्बन एमिशन एनवायरनमेंट रहे. जैसे कि आप दिल्ली में देख सकते हैं, मुंबई में उधर पोल्यूशन रेट 9.8 तक पहुंच गई है सर. अब अगर हम उसके लिए इसको यूज करेंगे तो वहाँ पर रिड्यूस होगा सर. बेसिकली इट वाज फ्रॉम माई सेल्फ नाउ. एंड सर माय नेम इज़ असद फ्रॉम क्लास 8 सर. और इसमें एक और बात है दैट हमें रेन्यूएबल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए. रेन्यूएबल में ये यूज़ ज़्यादा मतलब पोटेंशियल एक्चुअल, हम सनलाइट जो है ये एक पोटेंशियल है, मतलब कि हम इसका फुल यूज़ नहीं कर सकते, मगर इतना हम यूज़ कर सकते हैं कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में इसका ज़्यादा यूज़ करें और नॉन रेन्यूएबल चीज़ों को कंजर्व कर सकें. हैदर अली लिखो नहीं, पेन